transfusion reaction, it can be immediate or delayed. Blood transfusion का immediate response में we have febrile reaction, allergic reaction, acute hemolytic transfusion reaction, circulatory overload, endotoxic shock and fever, or transfusion related acute lung injury. So these are the immediate reaction to blood transfusion. In febrile reaction is a common early reaction. The symptoms are fever, chills and headache. Febrile reaction is caused by cytokines produced by leukocytes during storage. तो अगर ल्यूकोसाइट्स को कम कर देंगे तो साइटोकाइन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, जिससे फेब्राइल रिएक्शन कम हो सकता है. सो फेब्राइल रिएक्शन इज़ रिड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट डिप्लीशन फ्रॉम द ब्लड प्रोडक्ट. सेकेंड immediate reaction is allergic reaction. So there can be flushing, urticaria, fever, tachycardia, wheezing, dyspnea. Dyspnea means shortness of breath, and cyanosis. Allergic reaction is due to antibodies against the plasma protein in the donor unit, including IgA. Allergic reaction is categorized as type 1 hypersensitivity reaction. So donor के ब्लड में जो प्लाज्मा यूनिट होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो एलर्जिक रिएक्शंस करवाएंगी. ठीक है. सो एलर्जिक रिएक्शन इज़ ड्यू टू एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द प्लाज्मा प्रोटीन इन द डोनर यूनिट, एंड इट विल इंक्लूड IgA. दिस एलर्जिक रिएक्शन इज़ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें फ्लशिंग, अर्टिकेरिया या हाइव्स, फीवर, टैकीकार्डिया, वीजिंग, डिस्पीनिया दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और साइनोसिस मिलता है. देन वी हैव अक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन. दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ इमीडिएट रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. दिस इज़ टाइप 2 hypersensitivity. Allergic reaction type 1. Acute hemolytic transfusion reaction is type 2 hypersensitivity, and this is due to mismatch in the transfusion. Acute hemolytic transfusion reaction में hypotension, heat and burning at the transfusion site, fever, low back on chest pain, bleeding due to disseminated intravascular coagulation and oliguria due to renal failure. So acute hemolytic transfusion reaction में blood pressure काफ़ी कम हो जाता है. जो ट्रांसफ्यूजन साइट है वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन होगा, फीवर और लोअर बैक और चेस्ट में पेन होगा, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन के कारण ब्लीडिंग होगा और रीनल फेलियर के कारण ओलिगोयूरिया होगा. अक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कैन बी इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर. इंट्रावास्कुलर में ABO मिसमैच के कारण होता है, एंड दिस इज टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी. एक्स्ट्रावास्कुलर is due to presence of undetectable atypical antibodies in the recipient. So acute hemolytic transfusion reaction can be intravascular, that is type 2 hypersensitivity, या it can be extravascular. Extravascular acute hemolytic transfusion reaction is due to presence of undetectable atypical antibodies in the recipient. Circulatory overload, this is an immediate reaction. It occurs due to rapid transfusion, leading to congestive heart failure, more likely in patients with severe anemia and a history of heart disease. अगर ट्रांसफ्यूजन बहुत रैपिड है, बहुत क्विकली हुआ है, तो उसके कारण सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन CHF और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. Endotoxic shock and fever, this results from bacterial contamination of the transfused blood. अगर blood में bacterial contamination है, then there will be sepsis, fever
and endotoxic shock, transfusion related acute lung injury. It is characterized by acute respiratory distress, dyspnea, hypoxia and pulmonary edema. It is caused by antibodies in the transfused blood reacting with antigen in the recipient's lung, leading to inflammation and capillary leakage. It typically occurs within 6 hours of transfusion. ट्रांसफ्यूजन के 6 घंटे के अंदर रेसिपिएंट के लंग में जो एंटीजेंस है वो डोनर के ब्लड के एंटीबॉडीज से रिएक्ट करेंगे, जिसके कारण लंग में इन्फ्लामेशन और कैपिलरी लीकेज होगा। इसके कारण अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोक्सिया एंड पल्मोनरी एडिमा। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन हीमोसिडरोसिस एंड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। ये डिलेड है, दैट मीन्स 3 से 10 दिन में होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 3 से 10 दिन बाद होगा। इसमें होता क्या है कि रेसिपिएंट के पास एटिपिकल एंटीबॉडीज़ होंगे जो कि डोनर के आरबीसीज से रिएक्ट करेंगे एंड दिस विल लीड टू एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस। रेसिपिएंट के पास एटिपिकल एंटीबॉडीज़ हैं दैट विल रिएक्ट विथ द डोनर्स आरबीसीज एंड दिस विल रिजल्ट इन एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलाइसिस। जो अक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन था वो इंट्रावैस्कुलर भी हो सकता है, दैट विल बी ड्यू टू मिसमैच, या एक्स्ट्रावैस्कुलर में भी सेम कॉज है ड्यू टू एटिपिकल एंटीबॉडीज इन द रेसिपिएंट। देन ट्रांसफ्यूजन हीमोसिडरोसिस। बहुत बार ट्रांसफ्यूजन करने से बॉडी में आयरन का अकम्युलेशन होगा एंड दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ्यूजन हीमोसिडरोसिस। It is due to chronic or multiple transfusion reaction that results in accumulation of iron in the blood, known as transfusion hemosiderosis. Graft versus host response. This means जो डोनर के ब्लड में WBCs हैं या ग्रैन्युलोसाइट्स हैं वो रेसिपिएंट के टिश्यूज़ को टारगेट करेंगे। जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड में WBCs हैं वो रेसिपिएंट के टिश्यूज़ को अटैक करेंगे और ये स्पेशली इम्यून डिफिशिएंट पेशेंट्स में दिखता है। ओके, सो इमीडिएट रिएक्शन में फेब्राइल रिएक्शन था जो कि साइटोकाइंस के कारण होता है। ये साइटोकाइंस ल्यूकोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर WBCs को कम कर दे तो फेब्राइल रिएक्शन कम होगा। एलर्जिक रिएक्शन एंटीबॉडीज़ के कारण होता है जो कि डोनर के प्लाज्मा प्रोटीन के अगेंस्ट काम करते हैं एंड दिस इज़ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। अक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इट इज़ ड्यू टू मिसमैच या प्रेजेंस ऑफ अनडिटेक्टेबल एटिपिकल एंटीबॉडीज़ इन द रेसिपिएंट। सर्कुलेटरी ओवरलोड रैपिड ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है। बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड के कारण एंडोटॉक्सिक शॉक और फीवर होगा। और अगर जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड के एंटीबॉडीज़ हैं वो रेसिपिएंट के लंग के एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, सो दैट विल कॉज ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। इसमें अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलता है और ये 6 घंटे के अंदर हो जाता है। डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है जो 3 से 10 दिन में होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू एटिपिकल एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द डोनर्स आरबीसी। ट्रांसफ्यूजन हीमोसिडरोसिस का मतलब है मल्टीपल या क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन के कारण बॉडी में आयरन का एक्यूमुलेशन। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में जो डोनर का WBC है वो रेसिपिएंट के टिश्यूज़ को अटैक करता है और ये इम्यून डिफिशिएंट पेशेंट्स में कॉमन होता है।